Hello students, welcome to Gnanmanjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have completed our chapter number 5 and in the today's lecture we are going to start our chapter number 6 and the name of the chapter it is Towns, Traders and Craft Persons. So let's get start the chapter. So first of all, let's move to practice question 7.1. So question is, look at the following images and write down two features of the given places. Hint, think of the buildings, structures, people and things that you would see in each place. So ये जो दो images है इसमें हमें features लिखने होंगे कि इस image के features क्या है. So first of all, in the first picture we can see that the city area. काफी सारी buildings है. There are many buildings in the first picture and it is seemed as a city. Second picture is about small towns. In this second picture we can see that farm and one building. So it is seemed as farm. So first picture में आपको लिखना होगा you have to write city area and second picture में आपको लिखना होगा small towns. Then let's move to practice question 7.2. So complete table below. So first table it is related to administrative centers. So what are the important features of the administrative centers? First, had a perennial river and therefore it was a city with good water supply. So it is characteristics features of the administrative centers like it is the characteristics of city like had a perennial river. उसके पास एक river होगी जिससे पूरे city में आसानी से water supply हो सकता है. Second point, capital of a kingdom where the king lived. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स क्या होता है? किंगडम का कैपिटल जहां पर किंग रहता है इसी को हम क्या कहेंगे? कैपिटल. और इसी को हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. थर्ड पॉइंट, वेल कनेक्टेड टू अदर टाउन्स. ये अदर टाउन को अच्छी तरीके से कनेक्ट होगा. मीन्स रोड्स हो गए, वे हो गए, इससे हम अदर टाउन से कनेक्ट आसानी से हो पाएंगे. द प्लेस वेयर द आर्मी लिव्ड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्मी भी यहाँ पर ही रहेगी. जब भी वॉर होगी तो यहाँ से ही आर्मी वॉर में जाएगी. बिजी मार्केट्स एंड कल्चरल सेंटर्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स में मार्केट काफ़ी बिजी होगी एंड यहाँ पर काफ़ी सारे कल्चरल सेंटर्स भी होंगे. सो what are the structures of administrative centers? So first of all, temples. Second, mandaps or pavilions. Third, barracks of the army. एंड फोर्थ, wells and tanks. ये फोर स्ट्रक्चर हो गए इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स एंड यू हैव टू डायरेक्टली फिल अप इन योर सप्लीमेंट्री बुक. Then let's learn about small towns. So what are the important features of the small towns? First, usually had a central mandapika or marketplace. सो स्मॉल टाउन्स हम जानते हैं कि यहाँ पर कोई रिवर फ्लो नहीं करेगी बट ये एक फार्म एरिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगा एंड एक स्मॉल मार्केट प्लेस भी होगा. हैड मार्केट स्ट्रीट्स कोल्ड हत्ता. टाउन्स में एक स्ट्रीट होती है, मार्केट स्ट्रीट होती है जिसको हम क्या बोलेंगे? हत्ता. होम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स. यहाँ पर यूजुअली हम देखें तो आर्टिसंस रहते होंगे, ट्रेडर्स का रहना होगा. ये सिटी एरिया में नहीं रहते बट स्मॉल टाउन्स में रहते हैं. एंड सामंत लिव्ड हियर एंड लेविड टैक्सेस. एंड सामंत भी टाउन्स पे रहेंगे. देन व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स related to small towns? So first of all, fortified palaces of samants and second, people's house. तो स्मॉल टाउन्स में हमें क्या देखने को मिलेगा? फोर्टिफाइड पैलेसेस ऑफ सामंट्स एंड पीपल्स हाउस. Then let's move to practice question 7.3. So question is, identify two similarities between
administrative centers in medieval India and capital cities today? So answer is the head of the government usually lives in the capital, just like the king lived in the administrative center. And second, they both attract traders and are hubs of cultural and commercial activities. So ये similarity है between medieval India and capital city today, means एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स जो मिडाइवल इंडिया में होते थे और इंडिया में जो कैपिटल सिटी होते थे आज के टाइम में, तो ये दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये कैपिटल सिटी पे ही रहते हैं जैसे कि दिल्ली। एंड जस्ट लाइक द किंग लिव्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, जैसे जो किंग होते हैं ये मिडाइवल पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर पे होंगे। And they both attract traders and are hubs of cultural and commercial activities. कैपिटल सिटी पे जनरली कॉमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। सो ये दोनों पॉइंट में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। Then let's move to concept time 7, towns in medieval India. So there were four main types of towns in medieval India. First of all, administrative centers. So capital of a kingdom and home of the king, well connected to other towns. Third point, where the army lived. Fourth point, busy markets and cultural centers. Fifth point, usually fortified for protection from the invaders. And fifth point, examples like Thanjavur and Delhi. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की बात करें तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम का कैपिटल होगा, जहां पर हाउस देखने को मिलेगा किंग का। वेल कनेक्टेड टू अदर टाउन्स, यहाँ पर रोड्स एंड पाथ्स काफ़ी अच्छे हो गए, ये अदर टाउन्स को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएगा। वेयर द आर्मी लिव्ड, यहाँ पर आर्मी यहाँ पर होगी। बिजी मार्केट्स एंड कल्चरल सेंटर्स, यूजुअली फोर्टिफाइड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेडर्स, प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा होगा इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। एंड एग्जाम्पल क्या है, थंजावुर एंड दिल्ली। देन स्मॉल टाउन्स की बात करें, लार्ज विलेजेस दैट एक्सपांडेड इनटू टाउन्स, यूजुअली हैड अ सेंटर, मंडपिका एंड अ मार्केट प्लेस, हैड अ market street called Hatta, home to different kinds of artisans and traders. A Samant lived here and levied taxes. An example, Gwalior. It is the example of small towns. Small towns means यहाँ पर large village को convert किया गया होगा into एक small towns में। Usually had a central market place. यहाँ पर एक market भी होगी। And market में जो street है जिसको हम क्या बोलेंगे, हट्टा। एंड होम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स। स्मॉल टाउन्स पे जनरली कौन रहते हैं, आर्टिसंस और ट्रेडर्स रहते हैं। एंड अ सामंत लिव्ड हियर एंड लेविड टैक्सेस, और सामंत भी यहाँ पर ही रहेगी और टैक्सेस को कलेक्शन करेगी। एन एग्जाम्पल ऑफ द स्मॉल टाउन्स इज ग्वालियर। देन थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ टाउन्स। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ टाउन्स। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ टाउन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, temple towns and pilgrimage centers. So, developed around temples and religious sites. Kings gave land and money to priests and temples authorities. Temples attracted traders and craft persons. People began to settle around temples, like examples of the temples like temples towns like Tirupati and Vrindavan. सो टेम्पल टाउन्स मीन्स एक टाउन है जहाँ पर टेम्पल्स का बिल्डअप होगा और उसके आसपास लोग रहेंगे। मीन्स एक टेम्पल है और उसके आसपास एक सिटी एरिया देखने को मिलेगा। सो इस टेम्पल को जनरली फंडिंग देते हैं किंग्स। यहाँ पर प्रीस्ट को बुलाया जाता है, टेम्पल अथॉरिटी को मनी और लैंड प्रोवाइड करते हैं किंग्स। एंड टेम्पल्स अट्रैक्टेड ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। मेन रीज़न यही होता है कि टेम्पल्स अट्रैक्टेड ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, दैट्स वाई द बिल्ड अप ऑफ टेम्पल सीन इन द टाउन्स।
देन पीपल बिगेन टू सेटल अराउंड टेम्पल्स, और पीपल भी धीरे धीरे टेम्पल के अराउंड रहने लगेगी. लाइक एग्जाम्पल्स ऑफ द टेम्पल टाउन्स आर तिरुपति एंड वृंदावन. Then fourth, next point, commercial towns. So towns that were on trade routes, they are known as commercial towns. Trade attracted artisans, craftspersons, and traders. Some towns became centers of production for craft, like Banaras for textiles. Examples Pali and Mathura. They are the example of commercial towns. कॉमर्शियल टाउन्स मीन्स जो ट्रेड रूट के बीच में जो भी टाउन्स आएंगे इसको हम बोलेंगे कॉमर्शियल टाउन्स. लाइक ट्रेड अट्रैक्टेड आर्टिसंस, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स, दैट्स व्हाई दे सेटल्ड इनटू कॉमर्शियल टाउन्स. देन some towns became centers of production for craft, like बनारस for textile. मीन्स कुछ ऐसे कमर्शियल टाउन्स हो गए जो कोई एक बड़ा सेंटर बनेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट, लाइक बनारस जो टेक्सटाइल के लिए काफ़ी फेमस था. द एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल टाउन्स आर पाली एंड मथुरा. यू मस्ट रिमेंबर दिस all the example. Then let's move to practice question 8.1. So fill in the chart below to describe the development of temple towns using a pencil. So आपको ये tables सारे fill up करने होंगे in your supplementary books. So first of all, what happened and why? What happened means क्या हुआ और उसका reason क्या था. So first of all, rulers built temples. So the reason for the rulers built temple was to show their devotion to deities and gain the favor of their subjects. इसीलिए temples का build-up हुआ कि to show their devotion means अपनी spiritual feelings को दर्शाने के लिए, शो करने के लिए रूलर्स ने अपने टेम्पल्स को बिल्डअप किया. सेकेंड पॉइंट, दे गेव टेम्पल्स ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी. सो रीजन है कि टू कैरी आउट रिचुअल्स, फीड पिलिग्रिम्स एंड प्रीस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स. हमने आगे भी देखा था कि जो किंग्स है ये ग्रांट देते हैं, फंडिंग देते हैं टू द टेम्पल्स अथॉरिटी, क्योंकि इसका मेन रीज़न है कि टू कैरी आउट रिचुअल्स, फीड पिलिग्रिम्स, जो बाहर के कोई पिलिग्रिम्स है उसको खाना देना, एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स. इसके लिए ये सभी क्या करते हैं, ग्रांट प्रोवाइड करते हैं टू द टेम्पल अथॉरिटी. नेक्स्ट पॉइंट, पिलिग्रिम्स मेड डोनेशंस टू द टेम्पल्स. पिलिग्रिम्स भी अपना डोनेशन देंगे फॉर द रीजन एज चैरिटी, टू परफॉर्म रिचुअल्स और फॉर देयर बेनिफिट. Next point, temples authority used their wealth to finance trade and banking. Temple authority अपनी wealth का use करेंगे for the finance, trade and banking purpose. So इसका reason ये होगा कि to increase और multiply their wealth. Temple authority भी अपने money को banking sector में या फिर finance में use करेंगे. इससे क्या होगा, उसका wealth increase होता जाएगा. And next point, priests, artisans, traders, etc. settle around the temple. So इसका रीज़न यही है कि to cater the needs of the pilgrims. और इसके कारण जो priest है, artisans है, traders है, ये सभी टेम्पल के आसपास सेटल हो जाते हैं. Then let's move to practice question 8.2. So question is, do you think a temple town could develop in a similar way today? Give at least two reasons to support your answer. So answer is, people today still like to visit temples as pilgrims and tourists. Therefore, their presence will attract priests and small traders to set up their shops in the area. Even though there are no kings to give grants, rich people often donate money to build and maintain temples. मीन्स टेम्पल टाउन जो मिडाइवल पीरियड में डेवलप होते देखने को मिले, क्या आज भी ये से टेम्पल्स देखने को मिल रहे, उसके आसपास पॉपुलेशन देखने को मिल रही है. सो यस, पीपल टुडे स्टिल लाइक टू विजिट टेम्पल्स एज पिलिग्रिम्स और टूरिस्ट. Therefore, their presence will attract a priest and
स्मॉल ट्रेडर्स टू सेट अप देयर शॉप्स इन द एरिया। जैसे मिडाइवल पीरियड में था कि कोई टेम्पल है उसके आसपास प्रीस्ट रहते हैं, ट्रेडर्स रहते हैं, इसी तरीके से आज भी जो हमारे टेम्पल्स है इसके आसपास प्रीस्ट, स्मॉल ट्रेडर्स रहते हैं और अपनी शॉप को रन करते हैं। इवन दो देर आर नो किंग्स टू गिव ग्रांट्स, रिच पीपल ऑफन डोनेट मनी टू बिल्ड एंड मेंटेन टेम्पल्स। उस टाइम पे किंग्स थे बट आज के टाइम पे कोई किंग्स नहीं है, तो ग्रांट कौन कौन प्रोवाइड करेगा? सो आज के टाइम पे जो रिच पर्सन है ये ऑफनली अपने मनी को डोनेट करते हैं फॉर द बिल्ड एंड मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल्स। Then let's move to practice question 8.3. So question is, if you were a cloth trader in medieval India, which type of town would you choose to live in? क्वेश्चन है कि अगर आप क्लोथ ट्रेडर हो मिडाइवल इंडिया में तो आप कौन सा टाउन चूज करोगे फॉर द लिविंग पर्पस? सो आंसर इज, if I were a cloth trader in medieval India, I would choose to live in an administrative center because of the following reasons. अगर मैं क्लोथ ट्रेडर होता इन द मिडाइवल इंडिया तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में रहना चूज करता। रीज़न है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स वर कॉमर्शियल हब्स एंड अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम मैनी अदर टाउन्स एंड सिटीज, देयरफॉर आई वुड गेट मोर कस्टमर्स। सो फर्स्ट रीज़न है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर एक कॉमर्शियल हब है, यहाँ पर पीपल अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पर एज अ टूरिस्ट काफ़ी सारे पीपल आते हैं, देयरफॉर आई वुड गेट मोर कस्टमर्स कंपेयर टू स्मॉल टाउन्स। The king also lived in the administrative center and I could receive large orders from him and his family. मैं क्राफ्ट पर्सन मैं क्लोथ ट्रेडर हूँ, दैट्स वाई अगर किंग को भी मेरे क्लोथ्स चाहिए तो मैं उसको भी सेल कर सकता हूँ, उससे भी मैं लार्ज ऑर्डर रिसीव कर पाऊंगा। दैट्स वाई आई वुड चूज टू लिव इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। Then let's move to practice question 8.4. So it is, state whether true or false. Rewrite the false sentence correctly in your notebook. So first, Thanjavur was administrative center as well as temple town. So it is true sentence. तंजावुर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था और एक टेम्पल टाउन भी था, दोनों फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। Second point, craft person lived in the small towns only. It is false sentence because craft person lived in administrative centers, temple towns and commercial towns as well. Means craft person only small towns पे नहीं रहते होंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर पे भी होंगे, टेम्पल टाउन्स पे भी होंगे और कॉमर्शियल टाउन्स पे भी लिव करते होंगे। थर्ड सेंटेंस, टेम्पल अथॉरिटीज गवर्न द टेम्पल टाउन्स। मीन्स टेम्पल अथॉरिटी है ये अपने टाउन्स को गवर्न करते हैं। इट इज फॉल्स सेंटेंस बिकॉज टेम्पल टाउन्स ऑल्सो फेल अंडर द रूल ऑफ द किंग। मीन्स मेनली गवर्नेंस किसका होगा? किंग का होगा। मीन्स टेम्पल टाउन्स होगा फिर भी यहाँ पर मेनली गवर्नेंस होगा किंग का, नॉट टू द टेम्पल टाउन्स अथॉरिटी।